हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आप देख रहे हो एक्टिव सिंह चैनल। वेलकम बैक टू दी चैनल। It's okay now? Yes, sir. Okay. Somehow I don't know, there was some problem in my laptop. So I have joined from my mobile now. So how many students are there as of now? And what about last class? कितने सर students हैं अभी? ये कौन सी क्लास है? ये BLI 222 की क्लास है. ओके सर। सर 14 स्टूडेंट्स हैं, आपको इंक्लूड करके 15 मेंबर्स हैं टोटल। ओके, ऑलराइट. तो अभी लास्ट क्लास कितने बजे आपकी खत्म हुई? जस्ट अभी खत्म हो गया सर। ओके, ऑलराइट. See, like last time we discussed about information institution as information sources, right? ध्यान है आपको? हाँ जी. यस सर। Okay. Okay. Some humming sound is coming. I don't know where from. Just a minute. Let me do it like this. So last time we were discussing about information. In how many ways we can get information, right? So we talked about documentary sources of information. We talked about non-documentary sources of information. Non-documentary sources of information, we talked about institutions, है ना? Institutions as sources of information. और institutions के बाद institutions के अंदर भी हमने first of all it was human sources of information, then second was institution as sources of information, and the third one today we'll be discussing is that of what? Media source of information. Media. Yeah, media. Okay. Media as source of information. Okay. So therefore, some humming is coming in my earpiece. Meenu, please mute yourself. Yeah. So therefore, what I want to say is we'll be talking about media as a source of information. और मीडिया के बारे में भी हमने थोड़ा लिटिल बिट ब्रीफ तो पढ़ा ही था. पढ़ा इन द सेंस कि when we were discussing about different types of people who are say involved in giving us information, उसके अंदर रिपोर्टर्स की बात करी थी हमने, right? We talked about reporters as people who are involved in giving information to us. All right. So today we will cover this aspect. What is mass media? How crucial is the role of mass media, and how it can be. There are different varieties of it. All right. There are different varieties of it. How there are different components of it. There is a different scope of each of the these components, right? So you understand that what is the role of media in today's world, right? How powerful this component of media has become. Okay. Therefore, we need to see that
uh, this media is comprised of both kinds of component. One is print component and the other is electronic component. So print component we have already discussed, but there are very few, very important components of print media also, which we'll be discussing. And then apart from print, we have electronic media. Okay. तो अब आपको पता है कि मीडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज है, राइट? एंड आपने देखा होगा कि आज की डेट में नोबडी इज एबल टू रिमेन विदाउट मीडिया। वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से मीडिया से कनेक्टेड रहना चाहता है, राइट? एंड say newspaper, say television, say other news channel, right? तो वो किसी ना किसी तरीके से मीडिया से कनेक्टेड होता है। और आज की डेट में मीडिया अपनी सोसाइटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी नेशन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज इफ कि दे हैव बिकम ए यू नो ए मोड और ए मैकेनिज्म ऑफ सोशल चेंज। सोसाइटी के अंदर क्या चेंज होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो सारा का सारा मीडिया डिसाइड करने लगा है, राइट? सो देयरफॉर these they have become a very important instruments of change in society, and they are also able to impact every human activity, every human development. कुछ भी काम करना है, कुछ भी पॉलिसी बनानी है सरकार को, कुछ डेवलपमेंट होना है, तो हर फील्ड में वो कुछ ना कुछ उसका पॉलिसी को, कुछ माइंड को, लोगों के थॉट्स को शेप अप करने में they play a very important role, right? So these components are basically newspapers, radio, television, and many other, as per with the development of ICT, many new tools have emerged as a mass media. There may be website, there may be CD ROMs, and there may be portals. So there are many things which have derived now. Which have been derived now. Okay. So they not only provide us with the news, they also provide us with many information, many useful information. What is happening in industry? What is happening in politics? What is happening in governance? What is happening in judiciary? So what is happening in the entertainment world? तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है मीडिया के थ्रू आपको मिल जाता है, राइट? नाउ व्हाई डू वी कॉल इट अ मास मीडिया? मीडिया का मतलब तो होता है मीडियम। मीडिया मतलब व्हाट इज द मोड, लाइक किसके थ्रू वो आ रहा है? इज इट कमिंग थ्रू अ प्रिंट मोड और इलेक्ट्रॉनिक मोड, राइट? सो मीडिया इज द मीडियम कि इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मीडियम यूज हो रहा है, right? So therefore, and mass means connecting to people at large in a society, in a nation. Okay. So therefore, it is this mass media, through this mass media, they are able to connect to the masses, right? At one go, at one stretch, right? And therefore, mass would comprise of people in society, and these people would be comprised of many sections in the society. Maybe from the village people to people in our urban society, and this mass would comprise of illiterate people also. This mass would comprise of professionals also, and so therefore every section of the society is to be served through mass media. So that component has to be kept into consideration while designing its information programs and services. Therefore, then ये मास मीडिया के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका एक पूरा एक प्रोफेशनल सेटअप होता है, देन ओनली दे आर एबल टू डिलीवर
information through their such services. This mass media क्या रिपोर्ट करती है? Anyone? मास मीडिया क्या रिपोर्ट करती है? Anyone? बताइए. Mass media reports what is happening in the society, what all human activities or developmental activities are happening, right? क्या प्रोग्रेस हो रहा है सोसाइटी में, क्या पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने का काम भी करती है. हाँ, तो जो आपके सोसाइटी में, आपके नेशन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रहा है, ये नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, वो सारी की सारी चीजों को वो रिपोर्ट करती है. आपके चारों तरफ जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रहे हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहे हैं या नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, वो सभी को रिपोर्ट करती है. तो देयरफॉर दे in a way they are able to generate a very huge quantity of information. बहुत लार्ज क्वांटिटी में, वैलिड फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन को जनरेट कर पाते हैं, राइट? और जो ये मास मीडिया के अंदर चीजें रिपोर्ट होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, तो डिसेमिनेट होती हैं, तो वो सारे के सारे, जैसे मान लीजिए मे बी इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट व्हाट वाज द condition of agriculture in different parts during 1950s. तो क्या क्या कुछ prominent news क्या थे, prominent society में क्या हो, तो मीडिया में रिपोर्ट होता था. तो you can always look into what was reported in the news. कंटेम्परेरी आपकी सोसाइटी में पास्ट में क्या हुआ है, तो हिस्टोरिकल स्टडीज वगैरह करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मीडिया भी प्रोवाइड करती है, राइट? अब ये मीडिया जो मास मीडिया है वो आप मोबाइल पे भी, इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर पाते हैं, सीडी डीवीडी तो थे ही, राइट? एंड देन you have when you combine those technology into one, like communication technology भी है, आपके ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी भी है, राइट? और उसके अंदर कैमरास भी हैं, उसके अंदर माइक्स भी हैं, उसके अंदर मोशन भी है. तो ऐसे जब करते हैं तो बिल्कुल भी आपके पास एक नया फॉर्मेट आ जाता है, लाइक दैट वी कॉल मोशन फिल्म्स. उसके अंदर तो आर्टिस्ट भी हैं, उसके अंदर कैमरामैन भी हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट राइटर भी है, उसके अंदर कॉस्ट्यूम पर्सन भी है. तो जब एक ये पूरे सारी टेक्नोलॉजी का ओरल टेक्नोलॉजी का मतलब जिसके अंदर केवल डायलॉग डिलीवरी है, विजुअल टेक्नोलॉजी का जिसमें अंदर कैमरामैन भी है, आपके पास स्क्रिप्ट भी है, तो फिर वो सारी चीजों को कंबाइन करके वी गेट अ गुड मीडिया सोर्स, दैट इज कॉल्ड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज, राइट? तो अभी हम इसके अंदर हम बात करेंगे कि मीडिया जो है वो कैसे सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, और स्प्रेड करके दे आर एबल टू inform the masses about what is happening in the society, in the nation, and they are able to bring out certain they are able to influence the mind of people, right? कि क्या होना चाहिए, उनको ओपिनियन फॉर्म करने के अंदर वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? और ये जो प्रोसेस है, मतलब आपको क्या लगता है कि जो ये इंफॉर्मेशन है, जो ये जो वीडियोस जाती हैं, जो वॉइस जाती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, जो न्यूज आते हैं, वो इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग. एनी लेमैन कैन नॉट डू इट. इसके लिए बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, राइट? हाँ, इसके अंदर आपको कलेक्शन भी करना होता है इंफॉर्मेशन का, राइट? देन आप उसको कंपाइल भी करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं, एडिट करते हैं, कंपोज करते हैं, राइट? फिर उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको रिकॉर्ड करके स्टोर करते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट भी करते हैं. तो ये सारा प्रोसेस जो है, इट्स नॉट इजी. मास मीडिया इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम नाउ, राइट? So therefore, it has got a blend of technology into it, right? And it has got the velocity. Velocity मतलब बहुत स्पीड से कोई भी चीज आप कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? It's not simple. Like जैसे
एक पर्सन किसको कम्युनिकेट कर सकता है, कितने लोगों को कम्युनिकेट कर सकता है? बहुत स्पीड नहीं हो सकती। इट कैन नॉट, द पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट टू मासेस डायरेक्टली जब तक उसके अंदर मास मीडिया का कंपोनेंट इन्वॉल्व ना हो, राइट? एंड देन any information, any news item or any content, हाँ, वो लोग उसको देखें, लोग उसको पढ़ें और उसको अपनी उसकी ओपिनियन बना सकें, तो इसमें मास मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है इन चीजों के लिए, राइट? So therefore, we have these mass media, institutions of mass media. They have become institutions of public communication. पब्लिक कम्युनिकेशन का मीडियम हो चुका है। ये जो मास मीडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन। मतलब पब्लिक एट लार्ज को कुछ कम्युनिकेट करना है तो मास मीडिया का यूजफुलनेस आता है हमारे पास, राइट? और मास मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज देते हैं हम, वो किसको जाता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पीपल who receive this information? उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। What is that characteristic? ये जो इंफॉर्मेशन हम मास मीडिया के थ्रू लोगों को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या है? वो कैसे किन लोगों के पास जा रहा है? उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। What is that? You don't know. This information is being communicated to whom? You don't know. They are anonymous to you, right? It can be seen by a small child or a illiterate person or a industry expert, anyone. So therefore, you don't know what is the target audience. It is comprised of many sections of the society, and anonymous. It is transmitted to large number of people whom you don't know. They are anonymous. They are not known to you, and then it is a heterogeneous audience. Heterogeneous का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अलग अलग, एक कोई कैटेगरी नहीं है कि हाँ it is going only to the professionals, it is only going to the doctors, it is only going for children. No, it is going for a heterogeneous mass. Heterogeneous mass का मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं है, right? So therefore, a large strata of society, they are going to be its consumer, right? और मास मीडिया के अंदर कैसे कैसे लोग होंगे, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि it will be having scholars, it will be having professionals, it will be having layman, children होंगे, old person होंगे, है ना? तो and then these mass media should cover what all? It should cover what? It should cover information about current events, information about natural phenomena, and any information which is of interest to the public, right? कॉमन पर्सन के लिए, एक सिटीजन के लिए, एक सोसाइटी में क्या क्या चीजें चाहिए, उन सारे को वो रिपोर्ट करता है। और एंड देयरफॉर दैट वे कुछ भी एनीथिंग ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, है ना, ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए कुछ भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी मास मीडिया को प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड देन इट शुड ऑल्सो, हम क्या बोलते हैं कि मास मीडिया या फिल्म जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ना? इट इज मिररिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी और अ नेशन, ठीक है? किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी टेलीविजन चैनल में क्या चल रहा है ना? तो फिल्म में क्या चल रहा है या लिटरेचर में क्या चल रहा है, जो डेली रिपोर्ट राइटिंग हो रही है, मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं या न्यूज़पेपर में न्यूज आइटम आ रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो सोसाइटी में हो रहा है वही तो वो कैप्चर कर रहा है। तो देयरफॉर looking at what is being published in a newspaper or a magazine article, or what is being transmitted or broadcasted on a television channel, that will let you know what is happening in the society. और ये जो कुछ भी sometimes जब कोई लाइव इवेंट होता है तो उसकी रनिंग कमेंट्री भी होती है ना? जैसे आपने देखा मैचेस के अंदर होती है, राइट? कोई इनॉग्रेशन, कोई बड़ा इवेंट होता है, G20 इवेंट होता है, उसके अंदर भी मास मीडिया लोगों को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है
हाँ, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो देयरफॉर ये जो इंफॉर्मेशन का जनरेशन होता है, हाँ, रिकॉर्डिंग होती है, डिसेमिनेशन होता है, तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि क्रिएट हो जाता है, राइट? Anyone has to say anything till now? किसी को कुछ बोलना है? नो सर। Okay. So now we'll talk about कि ये जो मास मीडिया है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, राइट? व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक जो ये है कि भाई I mean, this is one such medium which can connect to the masses instantaneously, right? तुरंत से एक if in a society, if a government or if industry or government or a NGO or any institution who wants to connect to the masses, they can create current awareness. तो मास मीडिया एकदम से लोगों को जागरूक कर देता है ना, करंट इवेंट्स के बारे में बता के, either through radio or through television, right? And if you compare इसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंपेयर करेंगे प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में, तो प्रिंट मीडिया से जो रेडियो और टेलीविजन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, वो ज्यादा इंस्टेंटली है, दे आर फास्टर, हाँ, दे आर दे यू नो एकदम से डिलीवर कर देते हैं इंफॉर्मेशन कंपेयर टू प्रिंट मीडिया, कंपेयर टू न्यूज़पेपर्स. रेडियो एंड टेलीविजन आर मच मोर इंस्टेंटेनियस, राइट? देन जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है मास मीडिया का, and you know, like everybody cannot afford a television, right? Everybody cannot afford even a radio, right? But there is a component of mass media जो कि बहुत आसानी से लोग अफोर्ड कर लेते हैं, and that is called न्यूज़पेपर, right? तो न्यूज़पेपर भी जो है वो एक इंडस्ट्री है अपने आप में, और इंडस्ट्री है, और इट इज कुछ कंपोनेंट उसमें गवर्नमेंट का भी होता है, राइट? मतलब पहले न्यूज़पेपर्स गवर्नमेंट भी निकालती थी, लेकिन मोस्टली ये प्राइवेट हाउसेस, बड़े हाउसेस जो हैं वो निकालते हैं इसको. और जो ये न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, दे आर फ्री इन देमसेल्फ, राइट? तो उनको नेशन के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, लेकिन यस, they can have their own interpretation and they can criticize government also, और अपनी एक ओपिनियन दे सकते हैं वो, हाँ, and therefore it is called a fourth state, हाँ, and newspaper is one such component जो कि लोगों के ओपिनियन को चेंज कर देता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, राइट? एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर पब्लिक अफेयर्स क्या हो रहा है ना, क्या चल रहा है, तो अपनी कम्युनिकेशन वो न्यूज़पेपर वाले करते हैं, राइट? They become they are a very powerful tool in shaping the the public opinion on a given issue, and at many times there are certain articles which goes against government, and they are very much independent. They are free to write anything, not anything, but which has got relevance, right? Which has got relevance. So therefore, this mass media and this who comes जो ये newspaper की printing कौन करता है? Press करती है, right? So therefore, they have a very important role in shaping public opinion. They have very important role even in justice system. आपने देखा होगा कि कैसे कभी भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए मतलब they start coming out with their own opinion and own logic कि नहीं, इस केस में तो the victim should get justice. कई बार इतना ज्यादा ह्यूमन क्राई और सेंसिलाइजेशन हो जाता है कि किसी क्रिमिनल केसेस के अंदर they are able to create certain pressure on the government, pressure on the judiciary कि नहीं ये तो बहुत अनजस्ट हो रहा है विक्टिम के साथ, हाँ, और इसको जस्टिस मिलना चाहिए. तो you must have seen many cases in the past
कि जब जब कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो मीडिया रिपोर्ट करती है, न्यूज़पेपर की मीडिया हो चाहे टेलीविजन चैनल हो, वो रिपोर्ट करती है, तो इवन जस्टिस सिस्टम को भी वो इन्फ्लुएंस कर पाती है, राइट? Then they are also able to cover, you know, the technology, the development in technology, the development in science, the development in arts, language, cinema, right? Entertainment में क्या हो रहा है, telecommunication में क्या हो रहा है, and many other things. Okay, so therefore जस्टिस को भी इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक ओपिनियन को भी करता है. अब जैसे अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट वांटेड टू कंडक्ट दिस कास्ट सर्वे, तो कास्ट सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या 370 आर्टिकल रिमूव करा तो क्या उसके नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो एक ओपिनियन बिल्डअप होती है, राइट? एंड देन सिमिलरली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, एरोस्पेस में क्या हो रहा है, चंद्रयान कैसे जा रहा है, इंडिया आगे अहेड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारा का सारा जो है आपको रिपोर्टिंग जो है कहाँ से मिलती है, मीडिया के थ्रू मिलती है, राइट? एंड देयरफॉर through their functions, whatever they do, they are able to inform you, they are able to educate you, they are able to instruct, motivate, inspire, persuade, influence, mold what you think of, right? Mold what you think of. तो ये ऐसे करके you know, they are able to influence the masses, right? They generally also have you know, many these contents are also utilized by academicians, technologists, the media, I mean the other media people, the other judiciary people. तो ये सारा का सारा जो ये जो मतलब द कंटेंट है मास मीडिया के थ्रू, वो इतने डाइवर्स सेगमेंट के लिए होता है. एंड देन इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं काम करने के लिए, वो भी रिसर्चर्स होते हैं, राइट? इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, राइट? टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट? इट्स नॉट इजी टू वर्क इन अ मास मीडिया कंपनी. और वहां पे अगर आप हैं तो therefore you have to deliver, right? आपको डिलीवर करना पड़ेगा. You have to deliver, and then because you have to provide credible source of credible information, verifiable information, है ना? Yeah, anyone? So now, after this mass media general introduction, we'll talk about you know it very well that what is the positive influence of media, right? What is the negative influence of media? Okay. Positive influence क्या है? Positive influence ये है कि we have to show or disseminate those information, those content, जिससे कि persons जो citizen है, जो हमारा countrymen है, जो people in villages, people in urban areas, उन सभी के लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए. लाइक उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले उनकी सोशल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके पर्सनल ग्रोथ में. तो अगर मास मीडिया के थ्रू ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन की लाइफ में, ओके? जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक पर्सन की लाइफ में, तो ऐसे मास मीडिया के अंदर अब देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स इन द मास मीडिया जो सोशल एविल्स है उसके अगेंस्ट है, राइट? व्हिच आर अगेंस्ट द सोशल एविल्स. सोशल एविल के अगेंस्ट इसका मतलब जैसे एनीथिंग व्हिच इज बैड अबाउट सोसाइटी और अ कंट्री, से पोल्यूशन हो गया या फिर ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, तो इन चीजों को वो उनको अपोज करते हैं, राइट? They come out with certain programs जो अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं ऑनलाइन. हाँ, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू
they should not be seen as promoting these social ills, social evils, right? और rather आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ के लिए एजुकेटिव प्रोग्राम, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम शेयर करते हैं, जिससे आपकी ठीक हो, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो, है ना? जिससे एक सोशल हार्मनी बना रहे, आपस में लोग एक दूसरे से हेट ना करें, एक दूसरे को, है ना, के साथ हार्मनी में रहें। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है मास मीडिया का। सिमिलरली वी हैव मेनी थिंग्स जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया जिससे जिससे ये लगे कि आपने किसी को फेवर किया, किसी को बायसनेस दिखाई है, राइट? किसी मे बी फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, मे बी फॉर अ इंडस्ट्री, हाँ, या मे बी फॉर अ, यू नो, अदर मीडिया हाउसेस। तो अगर आप इस तरह का मिसरिप्रेजेंटेशन करेंगे, फैक्चुअली इनकरेक्ट होंगे, तो दैट्स कॉल्ड नेगेटिव इन्फ्लुएंस। कि उस मोमेंट पे तो आपने लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दी, जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता था, लोग आपस में यू नो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे, क्लैशेस हो सकते थे। तो दैट यू शुडंट डू। किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर, है ना, पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के बारे में अगर आप बता रहे हैं, या उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट्स अ अनएथिकल प्रैक्टिस, राइट? और अगर आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो गलत चीजों में बिलीव करते हैं, हाँ, और गलत चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, तो उसका बहुत ही गंदा इन्फ्लुएंस यंगस्टर्स पे जाता है, यूथ पे जाता है। कि यू आर प्रमोटिंग अ पर्सन हु हैज गॉट अ बैड लाइफस्टाइल। तो वो इन अ सेंस वो हमें भी, हमारे यंग जनरेशन को भी अफेक्ट करता है, राइट? और कोई ऐसी चीज आपको मास मीडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं कर रही है जिसके जिसके वजह से आपको फियर क्रिएट हो, जिसके जिसकी वजह से आपको पैनिक क्रिएट हो आईटी के अंदर, ऑलराइट? तो you shouldn't report such kind of thing, right? And at the same time, these people, these mass media people, ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, इसलिए गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर बहुत सारे एथिक्स लगाती है, कोड्स लगाती है, कन्वेंशंस लगाती है, रेगुलेशंस लगाती है, राइट? सो दैट दे आर नॉट एबल टू यू नो create certain wrong impression in the society, share something which is against the norms of the society, against this very social fabric, the democratic setup of the country. Okay, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, स्कोप हो गया, फंक्शंस हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट in detail, one by one, what are the different components of mass media, है ना? कंपोनेंट्स कौन से हैं? मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि मास मीडिया की, अभी तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक बात करी और स्कोप बताया और कवरेज बताया, फंक्शंस बताया, क्या क्या उसके इन्फ्लुएंस है, लेकिन नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर मैंने पहले बताया आपको कि प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, और सिमिलरली आप you know the other electronic media, that is casting, television, okay, and then recordings on CD DVDs, अलग different media होते हैं, हाँ, उसके थ्रू भी कई बार मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए CD DVDs का भी यूज किया जाता है, then motion films also। तो you know that I don't know उस समय तो लोग, आप लोग का बर्थ हुआ नहीं हुआ, लेकिन uh, uh, at one point of time in December 1990 or something, जब ये अयोध्या वाला जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, उस समय एक सीडी के फॉर्म में वो स्प्रेड आउट किया गया और उससे लोगों के अंदर आक्रोश हुआ या फिर पब्लिक ऑर्डर खराब हुआ। तो एट टाइम्स दीज सीडीज एंड डीवीडीज आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ओके, अब जब प्रिंट मीडिया की बात करते हैं तो प्रिंट मीडिया के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? यू नो, वेन the most important thing is newspaper, magazines, then you have leaflet, small books, हाँ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रिंट मीडिया में क्यों होती हैं, ये why they are called
media. Why? Because mass media. Why? Because they have the ability to communicate the information to a large section of the society, to masses. Okay, अगर न्यूज़पेपर पब्लिश होता है तो it goes to lakhs of people, right? So therefore they are called print media. And इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो न्यूज़पेपर का है, और न्यूज़पेपर का भी काफी कमर्शियलाइजेशन हो गया आज की डेट में, राइट? एक पूरा इंडस्ट्री है इसके अंदर, जिसके अंदर रेटिंग्स हैं कि हमारी कितनी सर्कुलेशंस होती हैं. दे द मीडिया, द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, दे फाइट अमंगस्ट देमसेल्फ कि मेरी इतनी सर्कुलेशंस होती है, मेरी इतनी हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्कुलेशन है दिल्ली के अंदर या ऑल इंडिया के अंदर. तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनका एक उसके अंदर पूरा एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, जो पीपल हु वर्क फॉर its production, people who work for writing its content, collecting the content, writing content. There are people who are editors, there are people who are managers, there are people who are technologists, right? तो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो काम करती है. और ये न्यूज़पेपर जो है वो इट्स नॉट ओनली वन वर्जन, राइट? इट कम्स आउट इन मेनी लैंग्वेजेस. कोई रीजनल इश्यूज भी होते हैं, राइट? और वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डिफरेंट पूरे एज ए कंट्री एक रीजन का भी न्यूज़पेपर होता है जो वहाँ के स्पेसिफिक इवेंट्स को रिपोर्ट करते हैं. एक नेशनल पर्सपेक्टिव का भी होता है जो पूरे कंट्री की न्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं, राइट? और अब जो ये न्यूज़पेपर्स है, दे हैव आल्सो लॉन्च देयर ओन वेबसाइट. तो लोग जो है अपने आप से कनेक्ट भी हो जाते हैं. हाँ, वो अपने आप से कनेक्ट होके, दोज हु हैव गॉट द मीन्स टू कनेक्ट थ्रू इंटरनेट, हाँ, वो न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाके भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो अब क्या-क्या चीजें पब्लिश होती है न्यूज़पेपर के अंदर. So I told you ना that since it is a medium for information to masses, so it has to cater to different sections of the society. तो उसके अंदर क्या-क्या चीजें होंगी? उसके अंदर जो डेली की इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी होगी. फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी होगा, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, साइंस, इन सभी की तरफ से होगा. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट they also come out with a very important component that is called entertainment. कुछ entertainment की चीजें भी होंगी, right? कुछ स्पोर्ट्स की चीजें भी होंगी, कुछ इंडस्ट्री की चीजें भी होंगी, कुछ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड चीजें होंगी. तो ये सारा का सारा ये न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया जाता है. और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द जो सबसे अच्छा फीचर जो न्यूज़पेपर के साथ है वो क्या है? एनीवन? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर. सर या आजकल जैसे न्यूज में कॉलम बन के आ रहा है जिसमें कहीं भी अगर कोई जॉब ओपनिंग या कुछ ऐसे नए फीचर्स आता है तो एक छोटा सा कॉलम होता है जिसमें जॉब ओपनिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है. तो यूथ के लिए वो एक इंफॉर्मेशन मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है. तो इट शुड बी an important part of newspaper as well. नहीं, मैं तो अभी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन व्हाट वे मास मीडिया के अंदर, इफ यू कंपेयर मास मीडिया का एक कंपोनेंट प्रिंट मीडिया का न्यूज़पेपर कंपोनेंट, और दूसरा जो है वो टीवी है या मोबाइल है या फिर रेडियो है, तो न्यूज़पेपर तो चीप है, जैसे चीप है एंड एट द सेम टाइम पोर्टेबल है. पोर्टेबल मीन्स पोर्टेबल, या पोर्टेबल है मतलब इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट? You can read this newspaper at any point of time, any place, any time, right? Even while traveling, even while you are going to sleep, even while you are sitting in your garden. तो लेकिन न्यूज़ रेडियो और बाकी टेलीविजन चैनल वगैरह के साथ ये नहीं है. तो therefore this is the greatest advantage of a print media like newspaper, right? And it carries different topics, political, economic, social, and then about different film personalities also, right? कुछ commentaries भी आती हैं, news भी आता है, market के बारे में आता है. There are certain people who deals in market, जो
सेंसेक्स में और जो स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करते हैं, हाँ, उनके लिए भी डेली के डेटा पब्लिश होता है इसके अंदर, राइट? कुछ एडिटोरियल छपते हैं। एडिटोरियल का मतलब ये होता है कि जो न्यूज़पेपर हाउस है, जो न्यूज़पेपर एजेंसी है, उसके अंदर एक चीफ एडिटर होता है। वो एडिटर जो है सेंसिंग द मूड ऑफ द नेशन, सेंसिंग द मूड ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग, सो ही और शी द एडिटर कम्स आउट विद एक स्पेसिफिक राइटअप ऑन अ डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? जैसे जब G20 हो रहा था, तो G20 पे एडिटोरियल छप रहे थे, राइट? तो इस तरीके से कभी इंडस्ट्री पे छपता है, कभी इलेक्शन के ऊपर छपता है। तो इस तरीके से जो न्यूज़पेपर के अंदर है, अलग-अलग चीज़ें कंटेंट आती हैं और पेंटिंग्स के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, नई बुक्स के बारे में, नई फ़िल्म्स के बारे में, राइट? नए नए आर्टिस्ट के बारे में, ये नए परफ़ॉर्मर्स के बारे में, उसके अंदर कुछ कॉमिक्स भी होते हैं, कुछ जोक्स भी होते हैं, कई पज़ल्स भी होते हैं, है ना? जो यूथ को लेके एम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, नए-नए एडवर्टाइज़मेंट्स भी होते हैं उसके अंदर। तो ये जो प्रिंट मीडिया है, उसका एडवर्टाइज़मेंट बहुत बड़ा कंपोनेंट है, राइट? व्हाई? बिकॉज़ व्हाट डू यू थिंक दैट एक न्यूज़पेपर को पब्लिश करने में, प्रिंट करने में और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में उसके अंदर जितना रॉ मटेरियल इन्वॉल्व्ड है, जितना इंटेलेक्चुअल एफर्ट इन्वॉल्व्ड है, वो क्या जो न्यूज़पेपर की कॉस्टिंग है, उससे रिकवर हो जाता है? थिंक अबाउट इट। No, sir, obviously not. हाँ, for how much do you get a newspaper today? Hardly 4-5 rupees. Yeah, 5 rupees. And maybe those on Saturdays and Sundays, on weekends, the issues are a bit costlier because it has got so many supplements into it, जो जिसके अंदर फिल्म्स, मीडिया एंड अदर चीज़ें कवर होती हैं, या एजुकेशनल भी कंटेंट होता है, साइंटिफिक कंटेंट भी होता है सप्लीमेंट्स के फॉर्म में। तो वो जो वीकेंड्स पे इश्यूज आते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, मे बी 10 रुपीज़, 15 रुपीज़। तो but even even in spite of that, they are not able to recover the cost involved in printing and publishing a newspaper through its content, through selling the newspaper itself. No, it is because they carry advertisement of different products, different institutions, different people, and that's why they're able to uh, make up for the cost involved into it, right? So these newspapers जो उसके अंदर कंटेंट पब्लिश होते हैं, उसका एक आर्काइवल वैल्यू भी बहुत होता है। आर्काइवल वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप उन न्यूज़पेपर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको आप किसी तरीके से प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व करेंगे? पेपर तो कई टाइम के बाद, वैसे तो कोशिश ये भी होती है कि प्रिंट फॉर्म में, पेपर फॉर्म में भी रखें, उसको स्टोर करें, बट उसको माइक्रो फॉर्म में भी रखते हैं, उसको एक उसकी फ़िल्म बना के रखते हैं और उसको आर्काइव करते हैं। तो न्यूज़पेपर की आर्काइव जो है बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स है और डिपेंडेबल सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, राइट? और पब्लिक अफेयर्स के बारे में जानने के लिए, ओके? सो देयरफॉर न्यूज़पेपर्स के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। कंस्ट्रेंट्स कैसे हैं? कंस्ट्रेंट्स ये है कि इस कंपोनेंट को, इस मास मीडिया के कंपोनेंट को कौन यूज़ कर सकता है? जिसको पढ़ने आता हो, राइट? जो लिटरेट हो। तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मास मीडिया का कुछ लिमिटेशन है। कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिटेशन है कि दिस कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड बाय पीपल हु आर लिटरेट, हु कैन रीड, राइट? एंड एंड देन जो 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 लोग पुअर हैं, दे कैन नॉट आल्सो अफोर्ड, ठीक है ना? न्यूज़पेपर एवरी डे, बाइंग न्यूज़पेपर एवरी डे, है ना? एंड उसके वजह से भी इन न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन कम होता है, हाँ? तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं इसके कि भई लिटरेट के लिए होता है या फिर अर्बन लोग ज़्यादा इसको यूज़ कर पाते हैं, हाँ? और रूरल folk के लिए बहुत कुछ नहीं होता, जो गाँव के लोग हैं वहाँ में, हाँ? या फिर जो प्राइस है, वो मतलब जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो गाँव के लोग हैं। तो ये इसकी थोड़े-से कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जो इसका है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन, जो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से जो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री है, उसकी उसकी वर्किंग भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। So as a media person or as a information professional, you should understand
what all it takes to come out with a newspaper publication. So therefore, it has got a very well structured, complex organization supported by editorial team, supported by administrative team, supported by business team and a production team, right? तो ये इसके अंदर जो है जो ये 4 कंपोनेंट है, इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कंटेंट से रिलेट करता है, वो एडिटोरियल टीम होती है, राइट? तो एडिटोरियल टीम का बहुत बड़ा रोल होता है और कि किस तरह के न्यूज़ जाने चाहिए, किस तरह के नहीं जाने चाहिए। देन जो बिज़नेस वाले पर्सन्स हैं, वो उसकी सेलिंग से मतलब रखते हैं कि कैसे सेल करना है इसे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, क्या प्राइसिंग रखनी है, राइट? प्रोडक्शन वाले लोग टेक्नोलॉजी वाले होते हैं कि कैसे कंपोज करना है, हाँ, कैसे प्रिंट निकलना है, राइट? कंटेंट का पार्ट एडिटोरियल वाले और बिजनेस का पार्ट कि कैसे सेल करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या क्या कितने एडवर्टीजमेंट छपने चाहिए, राइट? एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो लोकल उनकी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर भी बहुत सारी फंक्शंस या उसके ऑपरेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और किस फॉर्म में वो छपना चाहिए, इसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सा ग्लॉसी पेपर पे छपना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रिसाइक्लेबल पेपर पे होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको दे हैव ए स्पेशलिस्ट पीपल टू डिसाइड ऑल दिस, राइट? They comprise of even good journalists and then people who are good in writing. They're writing the columns, writing the articles, right? And then उसके अंदर भी लैंग्वेज एडिटर होते हैं, कॉलम राइटर्स होते हैं, प्रोडक्शन लेवल के स्टाफ होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। तो ये सारा का सारा एक पूरा कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। इट्स नॉट इजी कि भाई आप जो है वो है ना आसानी से कुछ भी मतलब एक न्यूज़पेपर को निकालना आसान नहीं होता। देन यू सी पहले की पब्लिकेशंस का जो प्रोसेस था वो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर होता था। नाउ एवरी विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज मोर और लेस स्विचिंग ओवर टू अ कंप्यूटर बेस्ड थिंग्स, राइट? तो कंप्यूटर से अब डेस्कटॉप से ही उसकी टाइपसेट वगैरह हो जाती है और फिर वो प्लेट्स वगैरह बनते हैं। तो अब उसमें कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा रोल आ गया है। Similarly, we have magazines and periodicals. तो मैगजीन्स periodicals के अंदर क्या होता है? मैगजीन्स periodicals के अंदर भी डिफरेंट थीम को डेडिकेट किए जाते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स एंड periodicals, और उसके अंदर भी कुछ आपने देखा होगा सिनेमा के लिए होता है, कुछ मैगजीन्स होती हैं जैसे पहले क्या बोलते थे उसको, there were certain magazines dedicated to film industry. There were certain magazines which were dedicated to domestic purpose, जैसे गृह शोभा, right? रीडर डाइजेस्ट, right? और कुछ जो मैगजीन्स हैं जैसे इकोनॉमिस्ट वगैरह, उसके अंदर मार्केट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं। तो कुछ मैगजीन्स जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, कुछ जो है वो इकोनॉमिक्स से, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो अलग अलग तरीके की मैगजीन्स छपती हैं, हाँ, periodicals छपते हैं, हाँ, कुछ बच्चों के लिए छपते हैं, कुछ लाइट रीडिंग के लिए होती हैं। अब जैसे इंडिया टुडे वगैरह हैं, तो दे इन्फॉर्म व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडिया टुडे, आउटलुक, हाँ, सो मेनी थिंग्स। एंड देन ये मैगजीन्स जो हैं ये मैगजीन्स जो हैं वो पब्लिश जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मंथली भी होती है, वीकली भी होती है, फोर्टनाइटली भी होती है, बाई मंथली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है। तो ये मैगजीन्स जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं और they have got a different frequency and they also come out with in certain issues they come out with a special features also and keeping in view the various type of audiences, right? और अभी इसके अंदर क्या करते हैं, जब पब्लिकेशन होती है तो देखा होगा तुमने कि मैगजीन्स वगैरह के कवर पेज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन की जाती है सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। हाँ, ग्लॉसी पेपर होता है, कोई ना कोई कलर्ड फोटोग्राफ होती है, हाँ, पिक्चर्स होता है और अट्रैक्टिव होता है सो दैट, और जब ये डिस्प्ले में हो, जब ये सेल आउट होता है तो डिस्प्ले करके सेल आउट होता है, तो उसमें लोग अट्रैक्ट होके ओके दिस काइंड ऑफ न्यूज हैज कम अप नाउ रिसेंटली। ये अभी जैसे कुछ मैगजीन्स ऐसी है जैसे टाइम,
टाइम जो है इंटरनेशनल मैगजीन है, उसके कवर पेज पे जिस भी बंदे की फोटो छप जाती है वो फेमस हो जाता है। या ऐसे पर्सन की, ऐसे फेमस पर्सनालिटी की ही, सेलिब्रिटी की फोटोग्राफ आती है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो देयरफॉर इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री। तो टाइम मैगजीन में अंबानी की फोटो छपी है या फिर किसी फिल्म स्टार की छपी है, या किसी ऑथर की छपी है, तो एक 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 पब्लिक परसेप्शन बनाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ये मैगजीन्स और जर्नल पीरियोडिकल्स का, जो पॉपुलर मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स होते हैं, राइट। और अब इनके ये वेबसाइट्स पे भी आने लगे हैं, राइट, मतलब दे कैन आल्सो बी एक्सेस थ्रू इंटरनेट, राइट। तो any question about magazines or periodicals? Yes, Maya. No, sir, nothing from my side. Mhm. Anyone else? Okay. So now after discussing this mass media, its general feature characteristics, uh, and then newspaper in particular, the first component, we'll now talk about the second component, and that is called radio broadcasting. So रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर क्या होता है, अगर कोई इवेंट होता है उसको आप लाइव भी कवर कर सकते हैं ना, यू कैन ऑल्सो कवर लाइव, राइट, इंस्टेंट, वेरी इंस्टेंट। हाँ, कोई 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 अगर से पॉलिटिशियन जो है, कोई स्टेट्समैन जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, हाँ, कोई स्पीच दे रहे हैं, तो यू कैन इंस्टेंटली ब्रॉडकास्ट इट, है ना, अपने चैनल से आप इसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, राइट। So therefore, it is instructive also and informative also. और now सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इवन द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ठीक है, इसमें फिजिकल जोग्राफिकल बैरियर नहीं है, राइट। इवन पीपल सिटिंग इन लद्दाख कैन लिसन टू व्हाट यू आर ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हियर, राइट। तो बिल्कुल इंस्टेंट है, जोग्राफिकली डिफरेंट जो लोकेशंस हैं, जो पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड, राइट, इवन कल्चरली, हाँ, किसी रीजन का कुछ और कल्चर है, तमिलनाडु का कुछ और कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ और कल्चर है, तो डिफरेंट रीजन जोग्राफिकली जो सेपरेटेड है, कल्चरली जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो ऐसे लोगों को भी आप इंस्टेंटली एक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, across distances, across masses who are culturally different. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है, राइट। सो द रेडियो क्या है, एक ओरल, आई डोंट नो ओरल क्यों लिखा है इसके अंदर, बट ओरल मीडियम में, आई मीन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द वॉइस, डिपेंड्स अपॉन द ऑडियो, राइट, या एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द माइक, everything depends upon the way you record or speak up. So therefore radio is primarily a program which is based on sound and voice, जो कि sound और voice पे based है, और इसके अंदर therefore anyone who is a radio artist, है ना, या फिर जिसको रेडियो पे प्रोग्राम करना है, तो वो उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए रेडियो के अंदर भी लोगों के ऑडिशन टेस्ट होते हैं, जिसमें वॉइस का टेस्ट होता है, हाँ। और कि रेडियो का जो अनाउंसर है, उसकी एक बात करने का, उसको कहने का जो डायलॉग डिलीवरी है उसकी बहुत पर्टिकुलर होती है, राइट, एक पर्टिकुलर स्टाइल में बोलता है, एंड सो दैट यू नो उसकी वॉइस में क्लैरिटी हो, उसकी बात में कोई एम्बिग्विटी ना हो, और बहुत ही मॉड्यूलेशन करता है वो, राइट। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि अपने पिच को, अपने एम्पलीट्यूड को वैरी करता है, कभी पॉज करता है, कभी टोन
अप करता है, कभी टोन डाउन करता है। और माइक्रोफोन से अच्छे तरीके से वो अपने साउंड के या जो वॉइस का आउटपुट है वो निकालता है, ताकि ब्रॉडकास्टिंग अच्छी हो सके और लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है? तो लेकिन उसके लिए भी ऐसा ना हो कि जो रेडियो जॉकी है या जो आर्टिस्ट है वो अ, ऐसे स्क्रिप्ट का यूज करे जो कि बहुत डिफिकल्ट हो लोगों को समझने में, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है, वो सिंपल होनी चाहिए, राइट? एंड इट शुड बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल और थोड़ा अपीलिंग होना चाहिए। हुँ। अब रेडियो को अगर आपको सुनना है, रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो कैसे 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 सुनेंगे आप? आपके पास नेचुरली एक ट्रांजिस्टर होना चाहिए, एक रेडियो होना चाहिए सेट, व्हिच इज़ व्हाट? Which is you can buy from market, and it's very cheap also compared to other means, say internet or television. Even in the same way, you can similar to newspaper also, because earlier the radio used to be of big size. Now it has come in a portable form. It has come in the form of a transistor. तो अब ये ट्रांजिस्टर जो है वो कैरी करना भी बड़ा आसान है। ट्रैवल के समय ऑफिस में भी लोग यूज करने लगते हैं, वर्क प्लेस में, किसी फार्म लैंड में है, कहीं पिकनिक स्पॉट में है, कोई बेड साइड में है। इवन सो मच सो कि लोग ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर्स चलाते हैं एफएम को। मार्केट में जाओ तो एफएम चलता है, राइट? सो एवरीवेयर, सो देयरफॉर this radio set is a very cheap, and it can be taken from one place to other very easily. So therefore radio is also a very powerful tool of mass media. And it's the thing is, if you compare it with newspaper or magazine, it is much more immediate. हाँ, इसका जो है एकदम से लाइव ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं आप, या फिर जैसे आप एयर करेंगे अपने वॉइस को, वैसे ही लोग कनेक्ट हो जाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक प्रिंट मीडिया जिसके अंदर पब्लिक कंपाइल होती है इन्फॉर्मेशन और फिर प्लस पब्लिश होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है, तब जाके मिलती है। लेकिन रेडियो के केस में इंस्टेंट है, राइट? तो इसके लिए भी बहुत टीवी इसमें भी रेडियो की पूरी सेटअप टीम होती है। देयर आर पीपल, स्पेशलाइज्ड पीपल। तो अब इसके अंदर भी जो कंटेंट है वो सेम एंटरटेनमेंट की भी होती है, इंफॉर्मेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हाँ, विलेज पीपल के लिए, कुछ स्पोर्ट्स का इवेंट है वो भी लाइव कवर होता है, राइट? इसके अंदर भी बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसे, प्ले भी करते हैं। हाँ, प्ले को भी ट्रांसमिट करते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी प्ले करते हैं, म्यूजिक के लिए भी होता है, और फार्मर्स के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर। डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रख के इसके अंदर अलग अलग कंटेंट होते हैं। और देयरफॉर जैसे न्यूज़पेपर है वैसे ही रेडियो भी लोगों के ओपिनियन को, लोगों की अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने वाला है। और वो भी लोगों को, रेडियो के जो कंपोनेंट है उससे भी लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है। दे आर एबल टू एजुकेट देमसेल्फ, राइट? सो नाउ कम्स इवन न्यूज़ पे इसके रेडियो के अंदर भी आप यू नीड टू हैव एडवर्टीजमेंट्स। आपने देखा होगा रेडियो में बहुत एडवर्टीजमेंट आता है, तो रेडियो के अंदर भी इट इज नॉट इजी कि भाई जो आप उसका कॉस्ट है वो रिकवर कर लें अपने प्रोग्राम से, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्जेस तो होते नहीं है। मतलब इफ यू वांट टू, यू हैव टू सिंपली बाय अ ट्रांजिस्टर टू लिसन टू अ रेडियो, है ना? या आजकल तो मोबाइल्स में हो गए सभी के, तो यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन अप फ्रंट। हाँ, लेकिन जो उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो उसी के थ्रू वो कॉस्ट रिकवर करते हैं। तो इनका भी जो स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का, है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो इसके अंदर भी यू हैव लोकल स्टेशन, यू हैव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यू हैव ऑपरेशन, यू हैव प्रेजेंटेशंस। तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है मैनेज करने का वो है।
और इसके अंदर भी अलग अलग तरीके की चीजें हैं, फिर स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, कमेंट्रीज हैं, म्यूजिक का है प्रोग्राम। तो अलग अलग। और अभी तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। पहले तो केवल ये जो आकाशवाणी होता था गवर्नमेंट का, वही वही करता था ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, आई मीन transmission. And then this also got this also has the radio transmission also requires certain specialist people like producer, director, program specialist, then artists, musicians, script writers, uh, technologists, news readers, commentators। तो इसके अंदर भी डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, हाँ, जो जो इसके रिसोर्स पर्सन है वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। एंड इसके अंदर हाउ इट इज बीइंग डन इज लाइक, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी जो यूज होती है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, उसी के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है। हाँ, और कई बार जो रेडियो स्टेशंस के आर्काइव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ इफ यू वांट टू लिसन टू द वॉइस ऑफ जवाहरलाल नेहरू और द वॉइस ऑफ दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, और अवर महात्मा गांधी, तो ये जो रेडियो के आर्काइव्स में आपको उनके वॉइस के सैंपल मिल जाएंगे। तो दिस सर्व इट एज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स एज ए आर्काइव, है ना। आप उसके रेडियो के आर्काइव में जाएंगे तो आपको वॉइस रिलेटेड जितने भी पुराने ऑडियोज हैं वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो एनीवन? तो रेडियो कितना पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक डिफरेंस बताओ न्यूज़पेपर में और रेडियो में। एनीवन? सर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं, और जबकि रेडियो की पहुंच इलिटरेट पीपल तक भी हो सकती है। Okay, good. What another component? What another characteristic? सर न्यूज़पेपर लाइव नहीं हो सकता, बट रेडियो कुड बी लाइव। Yeah. So immediacy और instantaneous, हाँ, अगर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो आपकी रेडियो में ज्यादा है, न्यूज़पेपर में कम है। तो दो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो भी आपके सामने डिस्कस हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेलीविजन। ओके, तो टेलीविजन तो आपने देखा होगा कि इट इज अ ब्लेंड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, कि इसके अंदर ऑडियो का भी मतलब डायलॉग भी है, इसके अंदर पिक्चर्स भी हैं, इसके अंदर विजुअल्स भी हैं, हाँ, एंड देन इसके अंदर थिएटर भी है, स्टेज भी है, फिल्म भी है, म्यूजिक भी है। तो टेलीविजन के अंदर तो आई मीन इट्स अ ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी चीजों को कंबाइन करके जो आपको सामने मिलता है वो टेलीविजन है। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मोशन फिल्म से ली गई हैं। मतलब जो टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स है वो भी तो अलग अलग तरीके के है ना। हाँ, कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं, उसमें न्यूज रीडिंग भी होती है, हाँ, उसमें कमेंट्री भी होती है, उसके अंदर रिकॉर्डेड सीरियल्स और फिल्म भी देखते हैं आप, है ना। सो देयरफॉर television has become a very important tool of mass media now these days। and what is इसके अंदर भी जो कनेक्टिविटी है वो इंस्टेंट है, इमीडिएट है। even you get to know how this the space rover चंद्रयान कैसे चल रहा है, वो आपको लाइव देख पाते हो आप, है ना। कोई भी दो कंट्रीज के अंदर वॉर हो गया, अभी इजराइल और गाजा पैलेस्टीन के अंदर वॉर हो रहा है, वो भी आप लाइव देख पाते हो। तो कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये टेलीविजन, जो चीजों को बिल्कुल इंस्टेंटली लोगों के साथ शेयर कर लेता है, राइट। अब इसके अंदर भी इट हैज टू केटर टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें भी जो कंटेंट है वो बोली हाईली इंफॉर्मेटिव होता है, इंस्ट्रक्टिव होता है, हाँ, और आपके नॉलेज को एक्सपैंड करता है, राइट। एंड it can have serials, it can have musical programs, it can have quiz programs। पहले क्विज भी आता था, बहुत लोग इंटरेस्ट से देखते थे। आपके माइथोलॉजिकल सीरियल्स भी आते थे,
एंटरटेनमेंट के लिए सीरीज भी आते थे, स्टोरी थ्रिल्स भी आता है ना, थ्रिलिंग स्टोरीज भी आती हैं। तो सभी एज ग्रुप को कैटर करने के लिए, सभी जेंडर को, सभी प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोगों को कैटर करने के लिए भी सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर होते हैं, राइट। एंड इसके बाद इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो फॉर ऑन एवरीडे बेसिस व्हाट डू वी सी इज अ न्यूज चैनल, राइट, न्यूज प्रोग्राम्स, तो टीवी के थ्रू। तो अब जो ये इसके अंदर टीवी टेलीविजन के अंदर देयर आर मेनी टीवी चैनल्स, कुछ जो है वो डेडिकेटेड है एंटरटेनमेंट म्यूजिक के लिए, कुछ न्यूज के लिए डेडिकेटेड है ना, कुछ फैशन के लिए है, कुछ लाइफस्टाइल के लिए है, कुछ कुछ स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है, कुछ स्पिरिचुअल चैनल्स हैं, राइट, कुछ जो जिनका कवरेज केवल नेशनल है, कुछ का कवरेज इंटरनेशनल है। तो इस तरीके से डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीवी चैनल्स आर देयर, जो कि अलग-अलग तरीके में स्पेशलाइज करते हैं, राइट। देयर आर ओनली फ्यू टीवी चैनल्स जो कि सब कुछ ही करते हैं, राइट। ये डिवोशनल भी दिखाते हो, म्यूजिक भी दिखाते हो और न्यूज़ भी दिखाते हो। तो अलग-अलग डेडिकेटेड टीवी चैनल्स हैं, यू नो देम वेरी वेल। देन वी हैव केबल टीवी आल्सो। जो केबल टीवी है वो लोकल, जैसे पहले क्या होता, अभी तो क्या हो गया कि डीटीएच लग गया सभी के घर में, सभी के पास छोटा सा डिश एंटेना है डीटीएच, और वो सैटेलाइट से डायरेक्टली वो ट्रांसमिशन आती है, उसको इसको रिसीव करते हैं और देखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि सभी के पास डीटीएच नहीं होता था, हाँ, एक पहले एक केबल टीवी ऑपरेटर होता था, वो अपने घर पे या अपने ऑफिस में, अपने कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा एंटेना लगाता था, फिर वहां से इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को टैप करके आपके घर में वायर के थ्रू भेजता था। तो दैट वाज कॉल्ड केबल टीवी, राइट। और उस केबल टीवी के अंदर वो कुछ अपने लोकल चैनल्स भी वो प्ले कर सकता था, लोकल कंटेंट भी प्ले कर सकता था। तो इस तरीके से केबल टीवी का भी एक मास मीडिया का रोल है। देन वी हैव सर्टेन नॉन ब्रॉडकास्ट चैनल्स। नॉन ब्रॉडकास्ट चैनल्स का मतलब ये होता है कि those channels, those TV channels who are not broadcasting on everyday basis regularly, वो कभी-कभी जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या कोई दूसरी एजेंसी है, वो कुछ पूरे वर्ल्ड को कुछ एक मैसेज देना चाहती है ना? तो वो अपना एक छोटा-सा वीडियो रिकॉर्ड करके टाइम टू टाइम लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, वो उस तरह के तो नॉन ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं। इवन फॉर दैट मैटर आपके जितने भी ये जो यू नो क्या ज्ञान दर्शन एंड यू नो थिंग्स लाइक कि जो एनपीटेल है, जो अलग-अलग एजुकेशनल कंटेंट भी देते हैं, तो वो नॉन ब्रॉडकास्ट चैनल्स कहलाते हैं। वो कभी-कभी करते हैं, नॉट ऑन एवरी डे और रेगुलर बेसिस। अभी तो अब सब कुछ ऐसा हो गया है कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स आते हैं इस तरीके के भी, ज्ञान दर्शन वगैरह पे, लेकिन नॉन ब्रॉडकास्ट है वो, स्पेसिफिक इश्यूज के लिए, स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए। तो इसी तरीके से जो आपका टीवी आर्काइव है, जो टेलीविजन चैनल्स पे जो वीडियोस बनते हैं, हाँ, वो भी रिकॉर्ड होते हैं, वो भी कहीं पे स्टोर किए जाते हैं, इनकी लाइब्रेरीज होती हैं, तो दे ऑल्सो बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब आप पास्ट, कभी फ्यूचर में जाके पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं, कंटेम्परेरी स्टडीज करते हैं या हिस्टोरिकल स्टडीज करते हैं, देन यू सी कि भाई क्या वैल्यू है इसकी, कि पहले मीडिया ऐसा होता था, फिल्म इंडस्ट्री ऐसा होता था। तो देन वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, सीडी एंड डीवीडीज, जैसे मैंने कहा आपको कि कई बार कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो किसी खास लोगों को देने हैं, हाँ, किसी स्पेशलिस्ट लोगों को देने हैं, किसी लिमिटेड सेक्शन को देना है। तो इन दैट केस यू कैन, मास मीडिया में तो आप कनेक्ट हो जाओगे सभी से, लेकिन सभी के पास एक्सेस हो जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट्स सर्कुलेशन टू अ लिमिटेड फ्यू या स्पेशलिस्ट फ्यू, तो आप सीडी डीवीडी का भी यूज करते हैं, राइट। और इसके थ्रू भी एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, कोई एक्सपर्ट वीडियोस भी आ जाते हैं। तो सीडी डीवीडीज का भी उसी तरीके से बहुत बड़ा रोल है। देन वी कम टू मोशन फिल्म्स। मोशन फिल्म्स क्या है? मोशन फिल्म्स आर, आपको पता है ना मोशन फिल्म्स क्या है? मोशन फिल्म इज दिस सिनेमा इंडस्ट्री, राइट, जिसके अंदर आप उसके अंदर आर्टिस्ट भी होता है, उसके अंदर परफॉर्मर भी होता है, उसके अंदर डायलॉग भी होती है, उसके अंदर कॉस्ट्यूम भी होता है, उसके अंदर कैमरामैन भी होता है, उसके अंदर
ऑडियो साउंड इफेक्ट भी होता है, हाँ, उसके अंदर लाइटिंग्स भी होती हैं। तो ये सारा का सारा जब जब ये सारी चीजें, सारी टेक्नोलॉजी, सारे तरीके के आर्टिस्ट, है ना, इन्वॉल्व हो गए, तो इन दैट केस इट बिकम्स अ मोशन फिल्म, राइट? So it is a collaboration. It is a collaboration of audio and video, and then camera, and then dialogue and language and story. So everything comes all together. और ये जो component है, ये बहुत ही powerful component है. It has got a big industry. हाँ. So many people are involved in production of a film, in making a film. Like you have producer, you have director, you have story writer, you have lyricist, है ना, dialogue writer, then even action people, जो costume है, makeup people हैं, camera people हैं. ये it's a big industry, right? And motion film बनाने के लिए आपके पास जो इवन रिकॉर्डिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डबिंग होती है, एडिटिंग के लिए होती है, राइट? कैमरास, जो मूविंग कैमरास होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर. ओके, सो therefore it's and you know, like people who are famous directors, हाँ, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, ऐसी फिल्म्स जो लोगों को अपील करती हैं, तो वो you know, they become quite a hit and it is remembered for a long time. हाँ, then हम इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर कर लेते हैं, तो फीचर फिल्म्स के अंदर भी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो जाती है फिल्म्स, हाँ, और माइथोलॉजिकल भी हो जाती है, हिस्टोरिकल. हाँ, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जब पहले बनती थी वो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन पे बनती थी, राइट? कुछ रोमांटिक मूवीज होती हैं, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए होते हैं. Then we have and it has to be it has got many sound effect, light effect, or and that makes the film great actually. और बहुत ही इंटरटेनिंग भी होती है, एजुकेटिव भी होती है, राइट? और पहले जो है ये फिल्म्स में सिनेमा हॉल्स में जाते थे, फिर ये वीसीआर के फॉर्म में भी शुरू हो गई थी, है ना? देन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं वो पर्टिकुलर थीम पे डेडिकेटेड होती है, और इसको भी जैसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस भी हैं या कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो निकालते हैं इसको, राइट? देन वी हैव गॉट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी you know, it employs many professionals and people into it, और कोई भी किसी भी तरीके की फिल्म नहीं बना सकता है, इसलिए वहां पे भी वी हैव गॉट अ रेगुलेटरी बॉडी कॉल्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, राइट? तो सेंसस बोर्ड या जिसको जो बोलते हैं ना, तो वो सेंसरशिप, हाँ, तो वो जैसे अगर किसी ने कंटेंट कुछ ऊट पटांग दिखाया या किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, कोई पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाली होती है, तो उसको सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं करते, दे कैन नॉट स्क्रीन इट इन पब्लिक. तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, वो इस काम को करती है. सिमिलरली ये जो इसके अंदर प्रोफेशनल्स काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो दे गेट ट्रेन फ्रॉम अ फिल्म इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है ना, नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. वहां से वो लोग उसमें आर्टिस्ट बनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कैसे इसमें हमें एक्टिंग करनी है, उसके लिए एक्ट्रेस वगैरह वहां से ट्रेनिंग लेते हैं, राइट? तो देयरफॉर ये इसके अंदर बहुत बड़े बड़े टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नीशियंस इन्वॉल्व होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टोरी राइटर इन्वॉल्व होते हैं, राइट? और सपोर्टिंग कास्ट भी होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, साउंड आर्टिस्ट, इल्यूमिनेशन एक्सपर्ट्स, म्यूजिशियंस, म्यूजिक डायरेक्टर्स, है ना, प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स, डायरेक्टर्स, एंड many more specialist people are involved in making a film. Okay, so फिल्म भी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मास मीडिया के कंटेक्स्ट में, राइट? नाउ यू सी वी हैव ये जितनी भी चीजें हमने बात करी जो मास मीडिया से रिलेटेड है, अब ये जो है मास मीडिया, रेडियो इवेंट कह लीजिए या फिर न्यूज़पेपर कह लीजिए या फिर टेलीविजन कह लीजिए, नाउ इट हैज स्टार्टेड बीइंग you know getting accessible in many format, right?
तो आपको अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ना है तो आप इंटरनेट पे पढ़ ले रहे हैं। अगर आपको कोई सीरियल देखना है, हाँ, कोई न्यूज़ चैनल देखना है, आप मोबाइल पे देख ले रहे हैं। तो देयरफॉर इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है ना? अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो दैट वे आप कई बार आपके कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप पे भी आ रही है, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है। यूट्यूब हैज बिकम सच अ ह्यूज ह्यूज एंड देन फेसबुक है, यूट्यूब है और व्हाट्सएप है। तो देन मतलब ये भी जो है मास मीडिया के कंपोनेंट बन गए हैं और जो फॉर्मेट है, जो वैरायटी है, हाँ, वो बहुत बढ़ती जा रही है विद द advent and blend of more and more technology, right? अब मैंने जो बात करी आपसे कि ये जो मास मीडिया का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी है, राइट? अगर आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करना चाहते हैं तो आप एडवर्टाइज करते हैं, राइट? और देन लाइक you also have if you want to popularize any film, you want to popularize any actor, any product, any services, so you do give advertisement in the मास मीडिया। हाँ, मास मीडिया का मतलब टेलीविजन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। बिकॉज आपने देखा होगा कि जिस भी मीडिया का सबसे ज्यादा टीआरपी है, हाँ, तो टीआरपी का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जिसकी व्यूअरशिप कह लो या फिर जो जिसकी सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन है वो कह लो। तो वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐसे मीडिया के जो टूल्स हैं जिसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होती है, नंबर ऑफ कॉपीज सर्कुलेशन सबसे ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे जो मीडिया के कंपोनेंट है उस पे लोग ज्यादा एडवर्टाइज करना चाहते हैं। तो if you are, and then there are certain public relation agencies जो पीआर बोलते हैं जिनको, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में या किसी भी सेलिब्रिटी की चीजों को मैनेज करते हैं, राइट? उनके बिहाफ पे वो फिल्म साइन करते हैं, उनके बिहाफ पे उनकी एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, पब्लिक के अंदर एक पर्सनालिटी क्रिएट करते हैं ताकि वो सेलिब्रिटी बन सके, राइट? तो मास मीडिया के अंदर फिर हमारे पास जो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली, माय वॉइस इज कमिंग, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स हैं, वो भी यू अंडरस्टैंड कि भाई कितने लैंग्वेजेस के अंदर हमारे को कैटर करना पड़ता है, राइट? मेनी लैंग्वेजेस, एंड देन कितनी मैगजीन्स, कितने periodicals, कितने फोर्टनाइटली, कितने क्वार्टरली, हाँ, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो मॉर्निंग एडिशन और इवनिंग एडिशन भी होते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज है उसके अंदर, सभी 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 चीजों को कैटर करना, सभी एरियाज को जोग्राफिकली, सभी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोगों को कैटर करना है। तो देयरफॉर न्यूज़पेपर जो है वो बहुत डाइवर्स है। कि हमारे यहाँ जो जो पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, ये हिंदी के अंदर, हिंदू भी है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, जनसत्ता भी है, सो मेनी, राष्ट्रीय सहारा भी है। तो इतनी वैरायटी है, हाँ, इतना कंजम्पशन है, राइट? तो आज की डेट में कितने कितने सारे न्यूज़पेपर्स हैं रजिस्टर्ड, कितने सारे मैगजीन्स हैं, इसका भी आइडिया होना चाहिए आपको, राइट? और ये जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो पीआईबी है या फिर आप प्रसार भारती इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल्स हैं उसके लिए, हाँ, इनके लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो ये इन चीजों को मैनेज करती है कि कहीं पे कोई इलीगल चीजें या अनएथिकल चीजें ना हो, हाँ, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये इस तरह की गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हैं, राइट? उसी तरीके से हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया रेडियो है, AIR, है ना, 1920 में स्टैब्लिश हुआ था, राइट? एंड उसके बाद कितने सारे प्राइवेट चैनल्स भी आ गए अब, राइट? और उसी तरीके से पहले केवल वी वर हैविंग ओनली दूरदर्शन एज अ टीवी चैनल, है ना? और उसके जो फिर बाद में रीजनल चैनल्स बन गए थे दूरदर्शन के, अलग अलग लैंग्वेजेस में, गुजराती, पंजाबी एंड, है ना, मेनी मोर। बट बाद में ये चीजें जो हैं
गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल से हटा के प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नाउ वी हैव मेनी मोर स्टार एंड सोनी एंड मेनी मोर. ओके, सिमिलरली फिल्म्स के अंदर भी हमारे पास जो हमारा जो इंडियन फिल्म है वो तो है ही है. अब फिल्म भी हमारे पास आती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से भी आती हैं, है ना, बाहर की वर्ल्ड से भी आती हैं. तो देयरफॉर इन अ वे दे आर कंस्टिट्यूटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन. और इसके अंदर हमारे पास जो मीडिया के पर्सन्स होते हैं वो भी जो मीडिया में काम करते हैं, जैसे जो न्यूज एंकर्स हैं और जो न्यूज़पेपर के कॉलम एडिटर्स हैं, कॉलम राइटर्स हैं, वो भी दे ऑल्सो कंस्टिट्यूट एज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आपने देखा होगा कि आजकल डिबेट्स में, टीवी चैनल्स पे, हाँ, मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन मीडिया एज ए as a editor or as a correspondent, as a writer, as a column writer, वो भी आके डिस्कशन करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं नए इश्यूज के ऊपर. This is all about media as a source of information. All right. So with this, we are now about to finish. We have completed 2 blocks. That is, one is documentary sources of information and another is non-documentary sources of information. Okay. Yeah, anyone? किसी को कुछ कहना है? No? No, sir. Okay. No, sir. Okay. So we have finished this documentary, non-documentary. Now we'll talk a little bit about today, a little bit about information services. Okay. Information services. अभी हमने 2 ब्लॉक्स कवर करे, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी वी विल टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज ब्लॉक 3. तो ब्लॉक 3 के अंदर विल टॉक अबाउट, ब्लॉक 3 के अंदर हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, नॉलेज क्या है, राइट, एंड हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट, कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और किसी सोसाइटी में, किसी नेशन में, दे ऑल लीड टू जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, क्रिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन. या कोई नेचुरल फिनोमेना है उससे भी इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है, राइट. और कुछ न्यू इंफॉर्मेशन भी क्रिएट होती है रिसर्च के थ्रू, है ना. गवर्नमेंट जो है अपनी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाती है, उसको डिलीवर करती है, हाँ, उससे भी इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है. कुछ सर्वेज होते हैं, है ना, सेंसस होता है, राइट. जो ऑथर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो सब के सब इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, राइट. नाउ ये जो जनरेट हुई इंफॉर्मेशन है वो फिर रिकॉर्ड होती है अलग अलग तरीके से. रिकॉर्ड होने के बाद ये जो है उसको स्टोर किया जाता है. स्टोर कैसे किया जाता है आपको पता है, प्रिंट फॉर्म में जो हमने अभी डिस्कशन किया, देन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हमने जो डिस्कशन किया, कि देन चैनल्स के थ्रू, है ना, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, फिर ये हमारे पास आता है, राइट. नाउ जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन जो है हमने बात करी थी कि जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है वो मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, और जो अगर प्राइमरी नेचर का है, जो नई इंफॉर्मेशन है, अगर वो रिपोर्ट होती है तो वो पेटेंट थीसिस, जर्नल आर्टिकल में, रिसर्च आर्टिकल के थ्रू होती है. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है तो वो बुक्स में, इंसाइक्लोपीडियाज में, डिक्शनरीज में, है ना, और इंडेक्सिंग जर्नल्स में, एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स के अंदर छप के आती है. और टर्शरी सोर्सेज क्या है, डायरेक्टरीज हैं, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज हैं. तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन है. और देन यू हैव ई रिसोर्सेस. ई रिसोर्सेस का मतलब क्या था, ई बुक्स, ई जर्नल्स, है, लाइक दैट. तो ये सारा का सारा जो है वो ये सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन सोर्स है.
अब इन्हीं इंफॉर्मेशन सोर्स की बेसिस से, इन्हीं की हेल्प से वी ट्राई टू क्रिएट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अपने डिफरेंट यूजर ग्रुप के लिए हम इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करने में लाइब्रेरीज का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत कंसिडरेबल रोल है। वो क्या है कि लाइब्रेरी करता क्या है, व्हाट ए लाइब्रेरी डज। लाइब्रेरी सिस्टमैटिकली कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन, है ना, कलेक्ट भी करती है, उसमें उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने का मतलब उसको कैटलॉग करना, उसका कीवर्ड्स लगाना, उसमें क्लासिफिकेशन नंबर डालना, हाँ, ताकि वो रिट्रीव हो सके। फिर कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करती है, फिर उसको स्टोर करती है एक तरीके से, है ना, स्टोर भी करती है, और सिमिलरली इसको डिसमिनेट भी करती है। तो लाइब्रेरी हैज गॉट सच अ ह्यूज रोल, राइट, and it is an institution to systematically collect information and then disseminate information, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस रहती है, right, and then we have therefore a library designs a different type of information services, और उसके अंदर वो अलग अलग जो यूजर ग्रुप है उसके हिसाब से भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज को डिजाइन करती है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजर कम्युनिटी कि किस तरीके का। इन जनरल आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज, कि वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो कैसे कैसे होनी चाहिए, राइट। तो इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता है कि हाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी को आप कुछ बता रहे हो, राइट, कोई ऐसी चीज बता रहे हो, यू आर इन्फॉर्मिंग समबडी, राइट, कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप उसको दे रहे हो, राइट। तो जो अगर कोई डेटा है, इफ सम डेटा इज देयर और उस डेटा को हम मीनिंगफुली अरेंज कर दें, एंड इफ इट स्टार्ट्स मेकिंग सम सेंस, सो दैट बिकम्स इंफॉर्मेशन, राइट। इफ आई से 2 5 6 7 8, हाँ, क्या है ये, so you won't be able to make out. But if I say there are two students in section A, 3 students in section B, 3 students in section C, and what is the total number of students? तो अगर हमको इसमें context दे दें डेटा के साथ, तो that becomes information। हाँ, जो अगर कोई useful डेटा है जिससे आप कुछ derive कर सकते हो, हाँ, तो वो information बन जाता है। And then any information which gets assimilated, जो उसको आप comprehend कर सकते हो अपने knowledge के साथ, अपने practical situation के साथ, अपने past knowledge के साथ, उसको किसी information को आप समझ सकते हो, apply कर सकते हो, that becomes your knowledge, right। तो information है, knowledge है, then communication के techniques है, technology है, right। तो ऐसे करके हमें इन सभी चीजों को यूज करते हुए we have to design information services, okay। अब इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी नीड्स क्या है, इंफॉर्मेशन की नीड्स क्या है, किस किस तरह की नीड्स होती है, ओके। सो किसी भी काम को करने के लिए आज की डेट में, हाँ, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट यू अंडरस्टैंड। फॉर एनी ह्यूमन एक्टिविटी यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन, राइट। if you want to go to certain place, you need to have information about what are the modes of transport, right? If you want to have resolve your health problems, you need to have information about the hospitals and the doctors, right? And then if you want to know something about what is happening in the society, तो या फिर इंडस्ट्री, तो आपको फिर न्यूज देखना पड़ता है। तो बिना इंफॉर्मेशन के आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रख सकते। व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द नेशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, या व्हाट इज हैपनिंग इन योर क्लास। तो ये सब जो सारे डेवलपमेंट्स को जानने के लिए, सभी एक्टिविटीज को जानने के लिए जो आपके चारों तरफ हो रहे हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक में क्या दिया है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। डॉक्टर्स इंजीनियर्स को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि फार्मास्यूटिकल्स में क्या चल रहा है। इंजीनियर्स को भी चाहिए कि भाई क्या लेटेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। रिसर्चर्स को
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हाँ, ताकि वो अपने आप को अप टू डेट रखे. ओके, एंड उसी तरीके से different types of users have different different types of need for information, right? So एक आपकी सोसाइटी में एक लेमैन भी है, आपकी सोसाइटी में एक स्पेशलिस्ट भी है, तो उन सभी को अपने अपने तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, हाँ. और ये जो नीड है, इंफॉर्मेशन नीड, that can be categorized into 4 types, right? One is current information needs, then exhaustive information needs, and then you have everyday information need, and then catching up information needs, right? तो ये 4 बेसिक तरीके के इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना. इंफॉर्मेशन नीड हो सकती है लोगों की. तो वो क्या है? करंट इंफॉर्मेशन नीड. क्या करंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, राइट? देन वी हैव एग्जॉस्टिव. एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? जो पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और आगे भी क्या होने वाला, उसको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए. सो सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय पीपल हु डू रिसर्च, राइट, हु डू सम काइंड ऑफ राइटिंग. कुछ जो लिखता है, जो रिसर्च करता है, जो ऑथर है, हाँ, वो जो है एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड होती है उसकी. अगर कोई रिसर्चर है, वो कोई एक टॉपिक चूज करना चाहता है अपना रिसर्च का, तो वो लिटरेचर सर्वे करेगा, राइट. लिटरेचर सर्वे करेगा कि क्या पास्ट में किन किन एरियाज में वर्क हुआ है और उसे किस नए फील्ड में वर्क करना चाहिए. तो ही और शी, द साइंटिस्ट और रिसर्चर और ऑथर, दे रिक्वायर एग्जॉस्टिव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट पास्ट, प्रेजेंट एंड आगे भी क्या होने वाला है, राइट. देन देयर इज वन कैटेगरी दैट इज कॉल्ड करंट इंफॉर्मेशन नीड. तो करंट इंफॉर्मेशन नीड इसके लिए होता है जो जानना चाहता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में माय वॉइस इज गोइंग. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. You are audible. मेरी आवाज आ रही है माया? जी सर, आ नूतन? यस, आपकी वॉइस क्लियर है. नो, यस सर, यस सर. जस्ट अ मिनट. हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. You are audible. I am not able to listen you people. Just a minute. आ रही आवाज? Yes, sir. Okay. But I am not able to listen to you people. I don't know what is the issue. So, therefore, and then like large number of surveys were also conducted कि in general लोगों को क्या किस तरह की information चाहिए होती है and what are the different persons, categories of persons जिनको. तो वो जो चीजें निकल के आई वो ये है, सर्वे से ये पता लगा कि करंट इंफॉर्मेशन नीड, एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन नीड चाहिए लोगों को. तो जो लोग ऐसे हैं जिनको पहले से किसी एक सब्जेक्ट के बारे में पता है, राइट, और पहले से किसी एक सब्जेक्ट के बारे में उनको बैकग्राउंड पता है, लेकिन अभी जो रिसेंट क्या हुआ है वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, राइट, अपडेट करना चाहते हैं. तो वो करंट इंफॉर्मेशन नीड्स के ऊपर जाते हैं, राइट. लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग हैं, हाँ, जो
मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को करंट इंफॉर्मेशन नीड होती है, जिनको अप टू डेट रहना होता है ऑन रेगुलर बेसिस अपने नए मतलब अपना जो भी उनका सब्जेक्ट एरिया है उसके अंदर. देन एग्जॉस्टिव एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. देन एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड के अंदर क्या है कि जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए, राइट, डे टू डे एक्टिविटी के लिए अगर आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस केस में आपको जैसे कोई एक लेबोरेटरी में कोई साइंटिस्ट वर्क करता है तो उसको हर तरह के स्टैंडर्ड्स चाहिए, राइट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, या फिर किसी लेमैन को अगर चाहिए तो वो किसी की फोन नंबर चाहिए, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम चाहिए, राइट, किसी का एड्रेस चाहिए तो वो डायरेक्टरीज देखेगा. तो एवरीडे इंफॉर्मेशन नीड भी एक टाइप ऑफ नीड है. एंड देन कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड्स का मतलब है कि द वन anyone who is not a specialist in a field, लेकिन वो क्योंकि he or she has to deliver something, some new speech, किसी एरिया में अपने आप को उसको प्रेजेंट करना है, तो वो उसका एक ब्रीफ उसको चाहिए. तो कैचिंग अप इंफॉर्मेशन, राइट. तो क्या वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोई प्रोजेक्ट है, कोई एरिया है जिसके अंदर बहुत सारे जो लिटरेचर के भी लोग हैं, उसमें साइंस के भी लोग हैं, उसमें इंडस्ट्री के भी लोग हैं. तो अगर लिटरेचर वाला पर्सन जो है अगर वो इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है तो वो कैचअप करेगा कि यस दिस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट इन दिस फील्ड. हाँ, तो एक ग्लिम्स चाहिए उसको. तो देयरफॉर कैचिंग अप इंफॉर्मेशन नीड्स है. एंड देन सिमिलरली वी हैव जनरल रीडिंग नीड्स और नीड फॉर इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन. तो ऐसे करके वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स. So I don't know why your voice is not coming, although has it done on speaker or not? Wait for a minute. Okay, so your voice, I am not able to listen to you people. So let's conclude for today, right? And next time I'll again be taking this chapter, information services, an overview. उसके अंदर बहुत सारे services हैं, anticipatory and then the other one रेफरेंस सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज हैं, राइट. तो अब वो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम. नाउ सो आई एम लिविंग नाउ फॉर टुडे, राइट. थैंक यू सो मच. आई होप यू understood what was taught in the first chapter, media as a source of information, and the second one is this information services. इसका तो मैंने केवल just introductory part cover किया today. Next time I'll cover the information services in detail. Thank you so much. And you be online because maybe Dr. Dharam would would join and say something, and then you can continue for the next class after break. Thank you. सभी रेलेवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपका फीडबैक ज़रूरी है. अगर आपके कोई सजेशंस है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना. स्टे फोकस्ड, स्टे प्रिपेयर्ड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.